हेलो एवरीवन। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਿਓਰਮਸ ਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਜੇਕਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਐਲਫਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਐਫ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਇਨ ਅ ਇੰਟਰਵਲ A to C। देखो आर एल्फा का इत्थे मतलब की आ कि साडे कोल जिहड़ा एफ फंक्शन आ ओह साडे कोल राइमन स्टैलजस इंटैगरल नूं बिलोंग करदा। राइमन स्टैलजस इंटैगरल आ जद राइमन स्टैलजस फंक्शन आ इन A to C एंड C to B। कहंदा बच्चे जिहड़ा राइमन आ ये साडे कोल किहड़े इंटरवल दे विच आ, A तो लैके C इंटरवल दे विच भी ये राइमन स्टैलजस इंटैगरल नूं फॉलो कर रहे ਉਹਦੀ कंडीशनस नूं एंड C तो लैके B ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ A to B ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ A to B ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ A to C ਪਲਸ C to B। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਏ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ A, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਆ A to B ਇੰਟਰਵਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ C ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ B ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਆ ਐਂਡ C ਤੋਂ B ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਆ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ A to B ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ A to B ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A to C ਪਲਸ C to B, ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੈਲਜਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ P ਇਜ਼ ਐਨੀ ਬਾਊਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਅ AB ਇੰਟਰਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਊਂਡਡ ਇੰਟਰਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ AB ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਦੈਨ ਐਨੀ ਐਲਫਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ AB 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਆ A to B ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਲ A to B ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਪਲੱਸ ਬਾਊਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਐਲਫਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਫਾ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਫ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ SP F ਐਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਨੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ A to B F of D ਐਲਫਾ ਇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ A to C ਅਤੇ C to B ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈਏ A to C ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ C to B ਲਈਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ P ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ A to B ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ P1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਕੋਈ A1 A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ X0 X1 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ P1 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਜੇਕਰ P1 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ P2 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, P2 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ Y0 Y1 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਕ P1 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ P2 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। P1 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ A to C ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ, P2 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ A to ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਮਨ ਸਟੈਲਜਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ P ਡੈਸ਼, ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ SP F ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ P1 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਉਹ SP
एंड एल्फा माइनस इंटैग्रल ए टू सी एफ डी एल्फा की वैल्यू की होएगी लैस दैन अपसाइलन होएगी बच्चे कि देखो की कहीदा हुंदा सानू कहंदे ਜਦੋਂ भी साडे कोल राइमन स्टाइलजस इंटैग्रल हुंदा तो असीं यही चीज़ लिखते हैं हुण ए टू सी उन्हें पहले ही दे रखा कि साडे कोल राइमन स्टाइलजस है इसका मतलब ये डेफिनेशन नूं सैटिस्फाई करेगा इहदे लई भी सानू एक पार्टीशन चाहिए हुंदी असीं वो पार्टीशन की लै लिया पी डैश P1 तो P1 तो असीं एक होर फाइन जी सानू हायर चाहिए होंगी जिहदी जी रिफाइनमेंट होंगी है तो असीं उहनूं की लै लिया P डैश कहते P डैश साडे कोल एक कोई इहो जी मैपिंग एग्जिस्ट करती है P1 तो वड्डी सच दैट ये कंडीशन साडे कोल की हो रही है फुलफिल हो रही है सैकेंड सेम असीं यही डेफिनेशन C टू B इंटैग्रल दे लिखांगे कहते जेकर P2 पार्टीशन है P2 तो मान लो साडे कोल एक होर वड्डी एग्जिस्ट कर रही है P बचे ਜਾਂ फिर P डैश कि सच दैट यही कंडीशन हुण बट इंटैग्रल साडे कोल की होएगा C टू B होएगा C टू B एफ डी एल्फा लैस दैन अपसाइलन देखो यही चीज़ की हुई है P डोनेट द पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट C बिलोंग्स टू P कहते असी कोई पार्टीशन ले लिया एक असी लिया P1 तो P2 फिर वो डेफिनेशन ला लगाई हुई है बच्चे कहता A टू C एस एफ एल्फा माइनस दिस वन ये कितों लैस होएगा अपसाइलन बाय 2 बच्चे अपसाइलन बाय 2 क्यों चूज़ किया असी ने क्योंकि सानू की चाहिए लास्ट तो अपसाइलन कला चाहिए जो अपसाइलन बाय 2 प्लस अपसाइलन बाय 2 हो जाएगा तो अपसाइलन नाल अपसाइलन कैंसल हो जाएगा 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा तो बचेगा साडे कोल अपसाइलन फिर यही डेफिनेशन असी दोबारा लिखी C टू B इंटरवल के लिए हुण असी ने पहुँचना कित्थे है बच्चे A टू B इंटरवल तक पहुँचना कहते असी जे इन्हां दोहां नूं कंबाइन कराता देखो सम दी फॉर्म च जे लिखे बच्चे कहता S P एफ एल्फा मतलब P की है साडे कोल पार्टीशन ऑफ A टू B कहते इहदी वैल्यू किहदे इक्वल होगी सम ऑफ P1 एफ एल्फा प्लस सम ऑफ P2 एफ एल्फा दे इक्वल होगी P1 तो P2 की सी बच्चे C A टू C तो C टू B की पार्टीशन सी जे कहिए कहते बच्चे A टू B पूरा फंक्शन चाहिए असी इनू दो पार्ट्स डिवाइड किया A तो लैके C तक C तो लैके B तक जे दोनों कंबाइन करांगे सानू की मिलेगा सारे का सारा ही सम मिलेगा A तो लैके B सम तक ही मिलेगा सो यही कह रहा है कहते सम ऑफ एफ पार्टीशन कि इक्वल होएगा P1 प्लस P2 के इक्वल होएगा नैक्सट बच्चे ਇਹਦਾ मतलब जे असी यही चीज़ प्रूव करा दीए कि अपने कोल जदों असी इस इंटैग्रल दे विचों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ माइनस किया लैस दैन अपसाइलन आंसर आ गया तो ये कि इक्वल आ एस पी एफ एल्फा के इक्वल आ तो ये की हो जाएगा साडे कोल रिजल्ट होल्ड कर जाएगा सो असी ने की लिखा कहते जेडे एस पी बचे असी P1 मन के चले P1 एफ एल्फा प्लस एस P2 एफ एल्फा माइनस A टू C इंटैग्रल A टू C इंटैग्रल इनू लैस दैन अपसाइलन असी ने प्रूव कराना हुण लैस दैन अपसाइलन कराने के लिए पहला जिहड़ियां उपर दो इनक्वालिटीज़ बनाई ने इन्हां दा यूज़ करांगे देखो बच्चे पहला जिहड़ी एफ वाली टर्म आ A टू C पहली दे नाल लिख लो दूसरी टर्म नूं इहदे नाल लिख लो फिर की करो कहंदे साडे कोल प्रॉपर्टी हुंदी है A प्लस B मॉड इज़ लैस दैन A मॉड प्लस ऑफ B मॉड सो ये वैल्यू हो जाएगी लैस दैन A मॉड प्लस B मॉड बच्चे ए दी वैल्यू कितों लैस अपसाइलन बाय 2 ए दी वैल्यू लैस दैन अपसाइलन बाय 2 प्लस अपसाइलन बाय 2 अपसाइलन आ गया दिस इंप्लाई साडे कोल जिहड़ा रिजल्ट आ ये कितों लैस हो गया अपसाइलन तो अगेन जो बच्चे असीं ने क्या हुंदा देखो वेट इसका मतलब की होंगे बच्चे जो ये वैल्यू लैस दैन अपसाइलन आ जाती है तो इदों असी कह सकते होंगे कि जी नीटा की वैल्यू आ जो मैं असी कहीए एस पी एफ एल्फा माइनस नीटा जेकर लैस दैन अपसाइलन आ जाए तो नीटा कि इक्वल होंगे A टू B इंटरवल एफ ऑफ D ऑफ एल्फा के इक्वल होंगे हुण देखो इत्थे नीटा की प्लेस से की पिया आ इंटैग्रल पिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कॉमन कर लो तो अंदर की बचेगा पॉजिटिव सो कहते ये वाले इंटैग्रल किहदे इक्वल होएगा साडे कोल A टू B एफ ऑफ B D एल्फा दे सो ये हो गया साडा रिजल्ट यही चीज़ असीं ने प्रूव करनी सी जेकर बच्चे इंटैग्रल एग्जिस्ट करता लैस दैन अपसाइलन है तो फंक्शन की होएगा राइमन स्टाइलजस इंटैग्रल होएगा A टू B इंटरवल दे विच ते साडे कोल ये इनक्वालिटी भी की करगी होल्ड करगी आई होप क्लीयर हो गया होएगा बच्चे नैक्सट आर्टिकल हैगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
नैक्सट है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो असी ने पहला ही किया हुआ, वैसे जिमें असी सिंपल करते थे कहते एक फस्ट फंक्शन होंदा एक सैकेंड फंक्शन होंदा। अप्लाई किमें करना होंदा, फस्ट फंक्शन एज इट इज़, सैकेंड दी इंटीग्रेशन माइनस सैकेंड दी इंटीग्रेशन जो की एज इट इज़ फस्ट दा डेरीवेटिव, फिर इनू सॉल्व कर लेंदे सी बच्चे, साडे कोल आंसर निकल आंदा सी। सेम कहते इत्थे भी असी उही प्रोसैस करांगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रूफ की करना, इफ एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा ऑन ए बी, देखो कहते कोई फंक्शन है एफ जो कि राइमन स्टैलजस आ ऑन ए बी इंटरवल के उत्ते, दैन एल्फा बिलोंग्स टू राइमन स्टैलजस आउट एफ। कहते बच्चे जेड़ा असी ने एल्फा फंक्शन लैना हुंदा जिहदे विद रिस्पैक्ट टू असी एफ नू चैक करते हैं कि राइमन स्टैलजस हैगा जां नहीं, वो एल्फा भी इस टाइम की आ राइमन स्टैलजस आ, ये चीज़ उन्होंने गिवन आ कि भी राइमन स्टैलजस आ विद रिस्पैक्ट टू एफ। राइमन स्टैलजस आ इसका मतलब बच्चे इसका इंटैग्रल की एग्जिस्ट कर रहा है ए टू बी एल्फा डी एफ, यदी वैल्यू की कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, ताइयों राइमन स्टैलजस होया। कहते दैन प्रूव करो कि ए टू बी एफ एक्स डी एल्फा एक्स इज इक्वल टू होएगा एफ बी अल्फा बी माइनस एफ ए अल्फा बी माइनस ए टू बी डी एक्स डी एफ ऑफ एक्स दे इक्वल होएगा। देखो बच्चे जी सीधा सीधा इनू करना चाहिए तो जिमें असी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो की कहने होंने जो असी सॉल्व करांगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो इतने साडे कोल यही लिखा होया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर असी इंटीग्रेशन का सिंबल पाने फस्ट फंक्शन की जिहदी इंटीग्रेशन की एज इट इज फस्ट का डेरीवेटिव, वही कुछ इत्थे होया होया। बस हुण इन्हूं थोड़ा जिहा असी थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जिहड़ा प्रूफ करना कि ये चीज़ साडे कोल किवें बनदी आ। सब तो पहला तो बच्चे असी ने की लिया, कहंदे जो भी ये सम सॉल्व करना जो सानू की चाहिए पार्टीशन, कहते ए टू बी इंटरवल की कोई पार्टीशन की एक्स नॉट एक्स वन अप टू सो वन एक्स तक एन तक, तो ये विचों असी कोई एलीमेंट पिक किया बच्चे, मान लो एक एलीमेंट आ जो कि है एक्स के, तो एक्स के माइनस वन, तो एक्स के दे विचों असी कोई सम टी आई चूज़ किया जिहड़ा इस इंटरवल के विच पिया, तो उहदे लई अगे की बनाने होने साडे कोल राइमन स्टैलजस सम बनना हुंदा, उहदा राइमन स्टैलजस सम वो की लिखा जाता के इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ टी ऑफ के, एफ ऑफ टी ऑफ के इंटू डेल एल्फा के, विच ये हुंदा साडे कोल वैल्यू राइमन स्टैलजस सम दी उहदा समेशन। हुण के वेरी 1 टू एन एफ टी के डेल एल्फा के, डेल का मतलब की होंदा बच्चे डेल एल्फा के का मतलब होंदा साडे कोल एल्फा के माइनस 1। सो कहते सब तो पहले एक पार्टीशन की एक्स नॉट तो लैके एक्स एन तक, फिर उसी कोई पर्टिकुलर इंटरवल लिया एक्स के माइनस 1 तो एक एक्स के इंटरवल लिया, ये कोई टी आई वैल्यू ली, टी आई वैल्यू के लिए असी की बना रहे हैं हुण राइमन स्टैलजस सम बना रहे हैं जो असी ने समेशन की फॉर्म च लिखा, जिहड़ा की हुंदा 1 के वेरी 1 टू एन समेशन एफ टी एल के डेल एल्फा के, तो जिथे डेल एल्फा के की वैल्यू की होंदी है एल्फा के माइनस 1। हुण इत्थे देखो असी समेशन दे विच वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दी है, कहते जो असीं इहनूं सम नूं लिखांगे तो बच्चे इसे फॉर्म का बनेगा। बस इन्हां ने असी ने के दे नाल वेरीएशन कराई सी, इन्हां ने आर दे नाल वेरीएशन कराई हुई है, उहदे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। जिवें आई वेरी 1 टू एन टी एफ टी आई एल्फा आई एक्स आई माइनस एल्फा एक्स आई माइनस 1। सो बच्चे तुसीं इहनूं के दे नाल भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण देखो अगे नूं की करना, साडे कोल समेशन है साडे आई वेरी 1 टू एन टी ऑफ एल, इनू अंदर प्रोडक्ट कर दो बच्चे, ये साडे कोल कुछ इस तरह का बनेगा जो इनू सम कल्ले कल्ले नाल प्रोडक्ट की 1 टू एन एफ ऑफ टी आई एल्फा एक्स आई माइनस समेशन आई वेरी 1 टू एन एफ ऑफ टी आई एल्फा आई माइनस 1 कले कले तो समेशन होएगा बच्चे। फिर उस तो बाद की करो, ये एक टर्म ऐड ते सबट्रैक्ट करो, इस दे विच एक टर्म ऐड ते सबट्रैक्ट की क्योंकि असी ने पूरा अपना रिजल्ट बनाना। वो टर्म कि ऐड सबट्रैक्ट की आई वेरी 1 टू एन एफ ऑफ टी आई माइनस 1 एल्फा एक्स आई माइनस 1, यही टर्म बच्चे सबट्रैक्ट करो आई 1 टू, क्योंकि असी जो भी कोई टर्म ऐड करते हैं तो वही टर्म सानू सबट्रैक्ट भी करनी पैंदी है क्योंकि असी टर्म नू चेंज नहीं कर सकते। सो इको टर्म असी ऐड ते सबट्रैक्ट की।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਡ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਕੱਢੇ। ਵੇਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਟੀ, ਐਫ ਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੇ ਵੇਰੀ ਵਾਈ ਆਈ ਵੇਰੀ 1 to n ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆਈ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੇਰੀ 1 to n ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆਈ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਵਜੇ ਆਈ ਵੇਰੀ 1 to n ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆਈ ਇੰਟੂ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਐਲਫਾ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਐਲਫਾ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵੇਰੀ 1 to n ਐਲਫਾ ਟੀ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਡ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਮ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, F1 ਐਫ ਟੀ 1 ਐਲਫਾ ਐਕਸ 1 प्लस एल्फा T2 एल्फा X2 एल्फा T3 एल्फा X3 ਇਹ ਸਮੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਆਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਭਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਐਲਫਾ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ ਐਲਫਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾ ਐਨ ਬਚੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਲਫਾ ਆਫ ਏ ਐਕਸ ਨੋਟ ਬਚੂਗਾ ਐਲਫਾ ਐਕਸ ਨੋਟ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਏ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਟਰਮ ਬਣੂਗੀ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਜੀ ਜੋ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਐਲਫਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਐਫ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਮਨਸ ਟੈਲਜਸ ਥੰਮ ਔਨ ਅ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਐਲਫਾ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਲਫਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਫ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਟੂ ਬੀ ਐਫ ਡੀ ਐਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਐਲਫਾ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ ਐਲਫਾ ਆਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਟੂ ਬੀ ਐਲਫਾ ਡੀ ਐਫ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7 let fx is equal to x and alpha x is equal to x plus x the greatest integer function, then find 0 to 10 f x d alpha x by definition। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਾय ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਰਾਈਮਨਸ ਟੈਲਜਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 0 to 10 ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਆ 0 to 10, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ 0 1/n 2/n ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ 10n/n, ਕਿਉਂਕਿ n ਨਾਲ n ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 10। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪੀ ਐਫ ਐਲਫਾ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੇਰੀ 1 to n ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਟੀ ਕੇ ਇੰਟੂ ਐਲਫਾ ਡੈਲ ਐਲਫਾ
ਡੈਲ ਐਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਐਲਫਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਡੈਲ ਐਲਫਾ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ ਐਲਫਾ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਲਫਾ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਸ਼ਨ 1 ਵੇਰੀ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 10n ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਕੇ ਇੰਟੂ ਟੀ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ के माइनस 1 क्योंकि बच्चे इतने साढ़े कोल पार्टीशन की है किस तरह की पार्टीशन है 0 1/n 2/n तो यदि जी केयर टर्म की होएगी वो की होगी k/n तो तो मूरे टर्म की होएगी k - 1/n तो उस तरह दी वैल्यूज़ असी ने वो सबसीट्यूट कीतियां। उस तो बाद हुण इहनूं ओपन कर लैने बच्चे कहते डैल फंक्शन सानूं दिता होया तो एफ फंक्शन भी सानूं दिता होया कि वैल्यूज़ किहो जिहियां ने देखो एफ फंक्शन की है एक्स आ तो डैल का मतलब की है एक्स प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हुण एक्स की प्लेस से की पे के अपॉन एल जो इत्थे सबसीट्यूट करोगे ये बन जाएगा के अपॉन एल प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन के अपॉन एन फिर इत्थे बन जाऊगा के माइनस 1 अपॉन एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ के माइनस 1 अपॉन एन। हुण उस तो बाद ब्रैकेट ओपन करके बच्चे कैंसल कर दो के अपॉन एन इधर भी माइनस के अपॉन एन कैंसल हो जाएगा बचेगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन के अपॉन एन द ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के माइनस 1 अपॉन द ग्रेटेस्ट इंटीजर मूरे बच्चे फंक्शन एफ का की सीगा कहते एफ दे विच एक्स पाया आंसर एक्स आऊगा सो टी के पाया तो आंसर की आऊगा टी के उन्होंने असी एज इट इज रखांगे हुण टी के दी अंदर मल्टीप्लाई कर दो समेशन सैपरेट कर दो तो साडे कोल इस तरह की टर्म बनूगी। हुण इस तो बाद बच्चे जदों असी समेशन स्टार्ट फाइंड आउट करना तो एंड ते असीं की करा देना कहते जिहड़ा आ इंटैगरल आ हुण इहदे विच की हो रहा बच्चे साडे कोल आई फंक्शन नूं रिप्रजेंट कर रहा कहते इस फंक्शन की साडे कोल इहदा समेशन तो इहनूं असीं अप्रोच करा दांगे बच्चे जो इहदा इंटैगरल सी 0 to 10 किहदा फंक्शन एफ एक्स का बट विद रिस्पैक्ट टू एक्स कोई एल्फा नहीं बच्चे कुछ नहीं बस 0 to 10 एक्स डी ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेशन करांगे x² 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साडे कोल आंसर आ गया 50। हुण जिहड़ा इहदे विच सैकेंड है बच्चे कहते इहनूं भी असीं सॉल्व करांगे सॉल्व करन दे लई क्योंकि के वेरीएशन हो रही है आई के दी वेरीएशन 1 तो लैके 10 ऑफ n पहले इस वेरीएशन नूं असीं 0 तो बनावांगे कहते जिथे के है बच्चे के नूं सबसीट्यूट कर दो आई एन प्लस एन आई एन प्लस एन जो आई एन प्लस एन तुसीं सबसीट्यूट करोगे तो साडे कोल जिथे आ जिहड़ा समेशन है इहदी वेरीएशन की बन जाएगी बच्चे 0 तो लैके 9 तक बन जाऊगी जिथे जिथे के पिया सीगा उत्थे की आ जाएगा आई एन प्लस एन आ जाएगा फिर इनू सॉल्व करोगे उस तो बाद देखोगे तुसीं समेशन लैना सी ने 0 तो लैके एन तक बच्चे किहड़ी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हुंदा कहंदे जदों असीं वैल्यूज़ कढ रहे हैं असीं इनपुट दे रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग जो भी बच्चे वैल्यू असी जी एंटर कर रहे हैं 0 तो लैके 1 के विच 0 तो बड़ी तो 1 तो छोटी है तो यदा आंसर क्या आता 0 जो 1 तो 2 के विच आंसर 1 2 तो 3 के विच आंसर साडे कोल 2 आएगा। इस तरह करते करते सानू आंसर मिल जाएगा कित्थे तक जाना असी ने 9 तक तो सानू लास्ट आंसर की मिलेगा साडे कोल 9th ही फॉर्म तक मिल जाएगा। फिर उन्होंने सारे का सम कर लेना बच्चे इतने सबसीट्यूट कर देना लिया के तो सानू की मिल जूगा साडा दोहां दा सम एंड ते करके सानू मिल जाएगा इस इंटैगरल की वैल्यू बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन किहड़ी राइमंड स्टाइल्स दी डेफिनेशन। नैक्सट बच्चे एक करते हैं 13 क्योंकि असी जोड़े आर्टिकल किए उन्होंने नाल दी एग्जाम्पल ने इफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर ऑन अ 0 to 1 इंटरवल दैन प्रूव कर पता करना कि जो एफ फंक्शन है कि वो राइमंड स्टाइल्स फंक्शन हैगा जां नहीं। बच्चे राइमंड स्टाइल्स इंटैगरल जेकर साडे कोल इहदी वैल्यू एग्जिस्ट करती है ए इंटरवल की है 0 to 1 एफ दी डी ऑफ एल्फा मतलब एफ दी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू डी एल्फा एल्फा दी वैल्यू कितनी है साडे कोल 0 to 1 एफ का मतलब तो एक्स आ ਇਹਦਾ मतलब की आ एल्फा की वैल्यू एक्स स्केयर पहला बच्चे डेरीवेटिव करना एक्स स्केयर का डेरीवेटिव की होएगा 0 to 1 एक्स 2 ऑफ एक्स इतने बच्चे किसी के विद रिस्पैक्ट नहीं हो रहा एक्स का डेरीवेटिव किसी के विद रिस्पैक्ट नहीं हो रहा तो सीधा की आ जाएगा डी ऑफ एक्स आ जाएगा तो ये बच्चे इंटीग्रेशन साडे कोल होगी 2x दी 3 अपॉन 3 जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर होंगे तो यह हो जाएगा 2/3 आंसर एग्जिस्ट करके इसका मतलब ही साडे कोल की होएगा राइमंड स्टाइल्स इंटैगरल की करेगा उन्होंने होल्ड करेगा। सो ये सीगियां साडियां कुछ एग्जाम्पल। हुण नैक्सट वीडियो दे विच इहदे अगले आर्टिकल करांगे नाल उदां दी रिलेटेड एग्जाम्पल करांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।